Hallelujah. We welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। A warm welcome from the Heart of Christ Church. हार्ट ऑफ क्राइस्ट कलीसिया की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। And we hope that you all are blessed. हम विश्वास करते हैं कि आप सब आशीषित हैं। We thank you for all for joining us right now. आप सब जुड़ रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद कहते हैं। As we begin this service, जैसे हम सर्विस सभा को शुरू कर रहे हैं, can you please turn to your Bibles from the book of Psalms 95? हम वचन खोलेंगे भजन संगीता 95 अध्याय। We are reading verse 1, 2, 3 and 6. वचन 1 से 3 और 6। Beginning from verse 1. Oh come, let us sing to the Lord, let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving, let us shout joyfully to him with psalms. For the Lord is the great God and the great King above all gods. Oh come, let us worship and bow down, let us kneel before the Lord our Maker. ओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हैं, उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। Hallelujah. हालेलुया। How wonderful our God is. कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है। The Lord has made this day. प्रभु ने इस दिन को बनाया है And we thank God for allowing us to enter into a new month. और हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु को, उन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया एक नए महीने पे प्रवेश करने के लिए। And we thank the Lord for bringing all our church members online. और Right now. हम प्रभु को धन्यवाद कहते हैं कि हमारे सारे कलीसिया को मेंबर्स को साथ में इकट्ठा करके इस ऑनलाइन में जुड़े रखे हैं। Before we begin this worship and word, जैसे हम सभा शुरू करते हैं, let us look up to the Lord in prayer. आइए प्रभु की ओर प्रार्थना उठाएं And let us seek Him diligently. और सच्चे मन से उनको खोजें। And let us pray for the worship team and the pastor. और हम आराधकों के लिए प्रार्थना करेंगे और पासवान के लिए प्रार्थना करेंगे। Come on, church, rise up and let us look up to the Lord in prayer. आइए कलीसिया सभी जुड़कर उठे और प्रभु की ओर प्रार्थना करें। Lord, we thank you for this time you have given us. प्रभु धन्यवाद कहते हैं इस समय के लिए। Lord, you said as per your word that you have made this day today. आपके वचन के अनुसार आज का दिन आपने बनाया है। Lord, we thank you for giving us this moment where we could worship you and praise you. आपको आपकी स्तुति करने और आराधना करने के लिए इस समय जो आपने दिया है, इसलिए धन्यवाद कहते हैं। As we begin this church service, Lord, we keep it into your precious hands. जैसे हम सभा शुरू करते हैं, प्रभु सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। We pray for the worship team who is going to lead us in worship. प्रभु हम आराधकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमें आराधना में चलाएंगे। We also pray for the pastor who is going to share the word as we enter into this new month. और हम पासवान के लिए भी धन्यवाद कहते हैं, जैसे हम साथ मिलकर इस नए महीने में प्रवेश करते हैं। And we pray that Lord Almighty God, you take total control of our church members who are watching us live right now. और हम मांगते हैं हम हमारे कलीसिया के मेंबर्स को भी आशीष करें जैसे वो जुड़ते हैं। Lord, you take total control of our lives, Lord. हमारे पूरे जिंदगी का टोटल कंट्रोल लीजिए। Lord, you also take total control of every need which we have in our lives. जो भी जरूरतें हैं उसको भी प्रभु आप पूरा कर दीजिए। Lord, your word says, let us come before his presence with thanksgiving and shout with glory and honor to the Lord. जैसे आपका वचन कहता है, स्तुति और आराधना से आपकी ओर आने के लिए। And your word also says that let us worship him and bow down so that we will look up to the Lord in truth and in spirit. और जैसे आपका वचन कहता है कि घुटने टेक कर प्रभु को दंडवत करना है।
We thank you for all the wonderful things you have done in our lives. हम धन्यवाद कहते हैं जो कुछ भी आपने हमारे जिंदगी में किया है, And we thank you for the things which you are going to do right now in the name of our Lord and Savior Jesus और Christ. जो कुछ भी आप करने वाले हैं उसके लिए धन्यवाद कहते हैं। We keep each and every one into your precious hands. सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। You take total control, Lord. पूरा कंट्रोल लीजिए And प्रभु। let your name be glorified in and through our lives. हमारे जिंदगी के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। We keep each and every one into your precious hands. सभी को अपने हाथों में सौंपते हैं। And let your name be glorified. आपके नाम की महिमा हो। In the name of Jesus we humbly pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Are you all excited to witness this wonderful service? क्या आप सब उत्साहित हैं इस सभा के लिए? And I'm sure that you would love it as the church service progresses. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप आनंदित होंगे जैसा हम कलीसिया के सभा में जुड़ रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। जैसे आप जुड़ते हुए, as you are joining along with us, we pray and we believe that you will be blessed. Don't forget to share this video with your friends and family so that they also will be joining along and they'll not miss out any blessing from the Lord. Amen. जैसे आप जुड़ते हैं इस वीडियो को जरूर अपने परिवार के साथ, फैमिलीज, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आशीषित होंगे। और आपके जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना का कोई भी रिक्वेस्ट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि जैसे सभा जरूर पास्टर आपके प्रार्थना पॉइंट्स के लिए जरूर प्रे करेंगे। As you are joining, please comment your prayer requests if you want us to pray for you. If you're celebrating your birthdays, your anniversaries, comment it in the comment section and we will definitely be praying for you. Amen. As you are all joining along together, put your hands together and let us worship the Lord in spirit and in truth. आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना हम करेंगे। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आमेन। हमारा परमेश्वर जिंदा है। आज का दिन यहोवा ने हमारे लिए बनाया है, हम इसमें आनंदित रहेंगे। बाइबल में लिखा है कि अगर हम रात भर रो रहे हैं तो भी सुबह को परमेश्वर आनंद को लेकर आता है। Though the sorrow may last for the night, the joy comes with the morning, the word of God says. And each new morning, the graces of the Lord, the mercy of the Lord is new. परमेश्वर का जो अनुग्रह हर दिन सुबह नया है। आमेन। आज का दिन यहोवा ने बनाया। ताली बजाते हुए हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, उनका नाम हम ऊंचा उठाएंगे। आइए साथ मिलकर प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे।
हालेलुया। जैसे हमने कल के बाइबल स्टडी में पढ़ा था, हमारी स्तुति प्रभु की ओर उठना चाहिए। हमेशा हमेशा के लिए हमारी स्तुति प्रभु की ओर रहना चाहिए। जैसे आप घर से आराधना करते हैं पूरे हृदय के साथ, पूरे मन के साथ, जैसे हम गाएं कि आज का दिन प्रभु ने हमारे लिए बनाया है, हम उसमें आनंदित रहेंगे। हालेलुया। तो जैसे हम ये आखिरी बार वो कोरस को गाते हैं, हम आनंदित ही रहेंगे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहेंगे। हमारा चरवाहा जिंदा है। हालेलुया। हमारा यीशु जिंदा है। आमेन। जैसे हम ये गीत गाते हैं, यीशु सच्चा गलिया, हम उसके बेड़े हैं। आज भी हम उनकी बेड़ हैं। इसके लिए परमेश्वर यीशु हमारा चरवाहा है, हमें चराता है, हरी चराइयों में चराता है। हालेलुया। आज भी हम ताली बजाते उत्साह के साथ ये गीत हम गाएंगे। यीशु सच्चा गलिया, उसकी हम बेड़ हैं। यीशु है सच्चा गलिया, उसकी हवेली है, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गलिया, उसकी हवेली है, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में चलता है, जहाँ बस गाय झरने बहती है। वादी पहाड़ी में चलता है, जहाँ बस गाय झरने बहती है। यीशु है सच्चा गलिया, उसकी हवेली है, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में तेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। मार्गों में तेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गलिया, उसकी हवेली है, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गलिया, उसकी हम
डर नहीं है। आमेन। आइए साथ मिलकर हम कबूल करेंगे। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गढ़िया, उसके हम मेरे हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है यीशु। यीशु है सच्चा गढ़िया, उसके हम मेरे हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। होसाना, होसाना, होसाना। सभी अपनी आवाज उठाकर होसाना, होसाना। होसाना, होसाना। होसाना, होसाना। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। होसाना, होसाना, होसाना। होसाना, होसाना। होसाना, होसाना। होसाना, होसाना। जब आप प्रभु की स्तुति करते हैं, स्वर्ग में आपका आवाज प्रभु के सामने गूंजना चाहिए, सुनाई देना चाहिए। प्रभु की स्तुति, आपकी आवाज वहां पहुंचना चाहिए। सिर्फ आपकी आवाज नहीं, अगर आप स्वर्ग जाएंगे, अकेले आप स्वर्ग नहीं प्रवेश, अगर आप अकेले प्रवेश करेंगे तो वो आपके लिए खुशी की बात नहीं है। लेकिन जब आपके प्यारे लोग, आपके परिवार आपके साथ प्रभु के राज्य में प्रवेश करते हैं, तभी आपकी खुशी, आनंद ऐसा उमड़ता जाएगा। हालेलुया। आप अकेले प्रभु के आनंद को अनुभव नहीं करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु के अनुभव, प्रभु का आनंद आपके परिवार के साथ आपको अनुभव करना चाहिए। हालेलुया। इस आराधना के समय जैसे हम प्रभु की स्तुति करते हैं, ये एक प्रैक्टिस नहीं, ये एक हैबिट नहीं कि हम प्रभु की स्तुति करेंगे, हम ऐसे एक गीत गाएंगे। लेकिन आज अभी इसी वक्त क्या आपका आवाज स्वर्ग में पहुंच रहा है? ये आपका एक सवाल है। हालेलुया। आप अभी मोबाइल फोन के सामने स्तुति आराधना करते हैं, तो क्या आप प्रभु की ओर अपना आवाज उधर पहुंच रहा है? क्या वहां पहुंच रहा है? वो समझते हुए आप आवाज उठाकर प्रभु की ओर अपने आवाज को आगे इतना उठाएंगे कि प्रभु की नाम की महिमा हो। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। ताली बजाएं। हालेलुया, आमेन। साथ मिलकर हम गाएंगे, पूरे परिवार के साथ। आप उधर से आवाज उठाइए, जैसे आप घर से गा रहे हैं, आवाज उठाइए ताकि आपकी आवाज स्वर्ग में पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। होसाना, होसाना। होसाना, होसाना। होसाना, होसाना। होसाना, होसाना। आइए जोरदार ताली बजाकर यीशु का धन्यवाद करेंगे। आमेन। हमारा चरवाहा जिंदा है। हालेलुया। वो वादी पहाड़ियों में ले चलता है, सुखदाई झरनों के पास हमें बिठाता है। वो जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। आमेन। जैसे परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जो उनकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। और बाइबल में वचन कहता है कि परमेश्वर के पवित्र पर्वत में कौन जा सकता है?
The word of God says, who can, enter the holy mountain of the Lord? He who has clean hands and a pure heart. जिसका हृदय साफ हो, जिसका हृदय शुद्ध हो और जिसका हाथ साफ हो। परमेश्वर आज भी चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करें। हम परमेश्वर यीशु को सच्चाई से जाने ताकि वो हमारे जीवन में कार्य कर सके। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि अच्छा चरवाहा अपने जीवन अपने भेड़ के लिए देता है। The good shepherd lays down his life for his sheep. जो चरवाहा रहते हैं वो अपने अपने भेड़ को जानते हैं, वो नाम से अपने भेड़ को जानते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है। Even before you were formed in your mother's womb, I knew you. हालेलुया। He called you by name. नाम से पुकारा है। यीशु कहते हैं I am the good shepherd. मैं अच्छा चरवाहा हूँ जो मेरे भेड़ के लिए मेरे जीवन को मैं देता हूँ। I give my life for my sheep. पर क्या आप परमेश्वर के भेड़ हैं? Are you the sheep of God? बाइबल में लिखा है कि अंतिम दिनों में जब न्याय के समय आता है, परमेश्वर कहते हैं कि वो भेड़ और बकरी को अलग करते हैं। भेड़ और बकरी, जब हम ये वचन मत्ती की किताब में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो परमेश्वर पिता जब न्याय करता है वो भेड़ को राइट साइड में और बकरी को लेफ्ट साइड में रखते हैं। बकरी और भेड़ जब साथ में रहते हैं तो सब सोचते हैं कि दोनों साथ में है, हम भी चरवाहा के हैं। तो भेड़ कहता है कि लॉर्ड लॉर्ड, प्रभु प्रभु करके वो कहता है, और प्रभु कहते हैं आओ मेरे आनंद में तुम प्रवेश हो जाओ। ये भेड़ और बकरी दोनों लॉर्ड लॉर्ड, प्रभु प्रभु करके पुकारते हैं। उसका मतलब ये होता है कि दोनों परमेश्वर को जानते हैं। They are not unbelievers, they are not unknown people. ये अविश्वासी लोग नहीं हैं। ये भेड़ और बकरी दोनों परमेश्वर यीशु को जानते हैं और वो कहते हैं लॉर्ड लॉर्ड, हमने आपके नाम पे ये किया वो किया। उसके बाद दूसरे वचन में लिखा है कि जब आप वस्त्रहीन थे हमने आपको वस्त्र दिया, आप जेल में थे हम आके आपको देखा। जब यीशु की दो घटनाओं को वो कहते हैं, हम जानते हैं कि जब लोग पुकारते हैं प्रभु प्रभु लॉर्ड लॉर्ड, इसका मतलब ये होता है कि वो प्रभु को अच्छे से जानते थे, वो परमेश्वर को अपना परमेश्वर जानते थे। पर परमेश्वर चाहते हैं, द लॉर्ड एक्सपेक्ट्स, चाहते हैं कि हम उनको सच्चाई से जाने। Not that we just know him as a God far away. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उनको जस्ट एक परमेश्वर जैसे जाने। वचन कहता है कि लोग अंतिम दिनों में ऐसे रहते हैं कि वो परमेश्वर को तो जानते हैं, खोटी आराधना करते हैं, खोटे विश्वास के साथ खड़े रहते हैं, पर प्रभु सच्चाई सत्य को जानता है। प्रभु भेड़ और बकरी को अलग करता है। प्रभु आज भी चाहता है कि हम वो भेड़ के बीच में रहे, ना कि हम बकरी के बीच में। Hallelujah. God wants us to be among the sheep and not among the goat. The Bible says the shepherd separates them one from another. He divides the sheep and the goats. The sheep he keeps on his right hand and the goats on his left. Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation. When I was hungry, you gave me to eat. मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी दिया। जो भी अच्छा काम इस दुनिया में करना था, तुमने कुछ चाहत के बिना पूरे मन से मेरे लिए किया। तुम आओ मेरे भेड़, मेरे राइट दाहिने हाथ में तुम आके पिता के खुशी में तुम प्रवेश करो। पर बकरी जो वो भी कहता है लॉर्ड लॉर्ड, प्रभु प्रभु, तो प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें नहीं जानता, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तुमने मुझे तो जाना पर मेरे लिए तुमने कभी जिया नहीं। आज भी परमेश्वर को जैसे हम कलीसिया होकर खोज रहे हैं, हम कहेंगे कि प्रभु मैं आपके नाम को तो जानता हूँ, I know your name, but I want to know the revelation of who you are. आप कौन है, आपका जो प्रकटीकरण है, आपका जो प्रकाशन है, मैं वो जानना चाहता हूँ प्रभु। आपके और मैं करीब आना चाहता हूँ। ये जीवन में जैसे मैं जीता हूँ, मैं आपकी सेवा आत्मा और सच्चाई से करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए अंत तक जीना चाहता हूँ। हालेलुया। अपने आप को हम नम्र करते हुए, समर्पित करते हुए हम परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मेरे जीवन को बदल दीजिए, मेरे परिवार को बदल दीजिए यीशु। मुझे खुशी आनंद शांति समाधान से मेरे जीवन को भर दीजिए यीशु। उद्धार के मार्ग पर मेरे परिवार को चलाइए, धार्मिकता की ओर हमें चलाइए प्रभु। Lead us in the paths of righteousness for your name's sake. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Everybody lifting your hands towards heaven. Everybody. I request you all to close your eyes, lift up your hands and experience that presence of the Lord. प्रभु की जो उपस्थिति है उसको महसूस करते हुए प्रभु की आराधना करेंगे. सभी अपने हाथों को उठाएंगे, अपने आवाज उठाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे. तू है सच्चा जिंदा खुदा. सभी, everybody, wherever you are, leave everything that you do. और सिर्फ प्रभु की ओर अपनी आवाज उठाएंगे. Hallelujah, Hallelujah, Jesus. तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा. तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा. सीमा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु सदो बलिदा. सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु सदो बलिदा. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. ओरे बाबा शिखर दलरो सियरा दलरा बाबा. एथेरे दलरी मासियरा दलरो शियरा दलरा बाबा. You are a good God. You are a good God and your love endures forever, Master. Hallelujah. आपकी उपस्थिति के लिए आप धन्यवाद कहते हैं प्रभु. आपकी महिमा के लिए धन्यवाद कहते हैं. आपके हर एक सैक्रिफाइस के लिए धन्यवाद कहते हैं. आपके बलिदान के लिए धन्यवाद कहते हैं. आपके प्यार के लिए धन्यवाद कहते हैं. आप एक सच्चा जिंदा खुदा हैं, इसलिए धन्यवाद कहते हैं. आपके सिवा हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं. आपकी उपस्थिति में हम कुछ नहीं है प्रभु. इसलिए धन्यवाद कहते हैं. हमारी जिंदगी में प्रभु केवल आपके नाम की महिमा हो. हम नहीं, लेकिन आपके नाम की महिमा हो. प्रभु जो कुछ भी गलत हम करते हैं, हमारे अधर्म कार्यों के लिए प्रभु हम माफी मांगते हैं. क्षमा कीजिए प्रभु. और आपकी पवित्र उपस्थिति में पवित्रता के साथ प्रवेश करने के लिए हर एक को मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से. हर एक के घरों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति को भर दीजिए. Hallelujah, Hallelujah. Let every house be filled with your presence. Let every sickness flee in the name of Jesus. हर एक बीमारी को दूर कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से. हर एक श्राप को दूर कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से. हालेलुया. आप ऐसे करने वाले इसलिए धन्यवाद. धन्यवाद यीशु. हालेलुया, हालेलुया. Lord Jesus, we pray that your name be magnified in our lives. हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि आपके नाम की महिमा हो. हर एक जिंदगी में आपके नाम की महिमा हो. हालेलुया. आओ चर्च, सभी आवाज उठाएंगे प्रभु की ओर. अपनी आवाज उठाएंगे. हालेलुया. वो योग्य है, वो पवित्र है, वो एक सच्चा यहोवा है. हालेलुया, हालेलुया. We thank you Jesus. We thank you Lord. We thank you Jesus. Hallelujah. We thank you Jesus. प्रभु जैसे हम इस आराधना के समय में आपको समर्पित करते हैं, इस समय के लिए हम धन्यवाद कहते हैं. We thank you for this beautiful holy presence that you filled us with, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We pray, Father,
that you will take total control over our lives, top to bottom, left to right, front to back. हमें घेर दीजिए प्रभु, आपकी उपस्थिति से घेर दीजिए, क्योंकि आप योग्य हैं। आपके सिवा, आपके बिना हम कुछ नहीं हैं प्रभु। हमारे हर एक कार्य में प्रभु आपके नाम की महिमा हो। हमारे जीवन में लोगों को आप दिखाई दे प्रभु। Let people see you in us. We thank you Jesus. Thank you Lord. इस पूरे समय को प्रभु आप आपकी नाम की महिमा की ओर से You take total control. वचन द्वारा हमसे बात कीजिए, पासवान के द्वारा हमसे बात कीजिए। जो कुछ भी आपने हमारे लिए तैयार करके रखा, उसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं। सारा महिमा, सारा आदर केवल यीशु को मिले। We give you all the glory, honor and praise. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. 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 बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। Wherever you are right now, I want you to give the Lord a mighty clap offering. जहाँ भी है, जोरदार ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। क्योंकि आज जैसे हम आराधना करते हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि हम उसके लिए योग्य है, नहीं, लेकिन क्योंकि वो योग्य है, वो विश्वास योग्य है। He is mindful of you and me. Hallelujah. वो आपके बारे में, हमारे बारे में हर पल सोचता रहता है, क्योंकि हम उसके लिए योग्य नहीं, लेकिन फिर भी इतना हमसे प्रभु प्यार करता है। हालेलुया। जैसे आप वचन के लिए तैयार हैं, बाइबल खोल के तैयार रहिए, ताकि वचन प्रभु आपसे बात करे। हालेलुया। Hallelujah. God bless you. Be ready and share the videos with your friends and families. और वचन के टाइम में भी अगर आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कृपया कमेंट सेक्शन में लिखिए और प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम से आप सबको मैं आशीष देता हूँ। I bless you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. इस सुंदर समय के लिए प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। We praise the Lord for this good time. परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है, Our God is a God who does good things. आशीष देने वाला परमेश्वर He's a है, God who blesses us. और आपको वो देखने वाला परमेश्वर है। And He's a God who watches over us. अगर आप सच्चाई मन से, सच्चाई दिल से परमेश्वर का स्तुति आराधना करने के समय में परमेश्वर तुम्हें देखते रहता है। And when you worship the Lord in truth and in spirit, God is watching over you. वो बहुत आनंदित होता है। And He rejoices over you. आप कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करने से परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास करता है और आपको पर आनंदित देता है। And it doesn't matter from what religion background you are or what caste or creed you are from. When you worship the Lord, when you seek His face, He answers you. Hallelujah. Hallelujah. इतनी साल में से वो 28 को मेरा जन्मदिन के लिए आप सब ने जो विश किया था और आशीष दिया था, प्रार्थना किया था, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष देता हूँ। And thank you so much for the wishes that you have sent to Pastor. And as you all have wished in so many various ways, be it videos, photos, and all the calls and wishes, we want to thank you for it from the bottom of our hearts. और आप साथ में मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर ने जो इतना जो मौका दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। And we praise the Lord for giving us the opportunity to worship Him along, worship Him. ये जो सुंदर समय के नवंबर मंथ में आज पहले तारीख है। And today is the 1st of November. ये मंथ में परमेश्वर कुछ आशीष देना चाहता है तुम्हें। And God wants to give you a blessing today. और आज परमेश्वर आशीष देने वाला है, तुम्हारे जीवन में कार्य होने वाला है। And even today the Lord is going to bless you and He's going to do a work in your life. सब जन आमीन कहेंगे। Come on, let's say amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। ये जो वचन में हम लिखेंगे, भजन संगीता 31 वचन 24, Psalm chapter 31 verse 24 हम पढ़ेंगे। Be of good courage, and He shall strengthen your heart, all you who hope in the Lord. हम परमेश्वर का इंतजार करते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर हम इंतजार करते हैं। We read Psalm 31 verse 24. हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे।
हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के ऊपर जो आशा जो रखने वाले हम सबको परमेश्वर जो कहता है, And the ones who hope in the Lord is telling you this day, तुम्हारा हृदय को दृढ़ करो। दृढ़ करो। He says, strengthen your heart. अपने हृदय इधर उधर नहीं जाना है, मतलब लूज नहीं होना है। Many a times our heart is sorrowful and we lose heart. So God is saying, strengthen your heart. परमेश्वर को ऊपर हम विश्वास करना है। We have to believe in the Lord. अगर हम परमेश्वर को ऊपर हम विश्वास के साथ रहने इस समय में परमेश्वर अपने हृदय के दृढ़ करके देंगे। And when we continually hope and have faith in the Lord, He will strengthen our heart. आप सोचेंगे आपके ऊपर बहुत जन परमेश्वर के दास लोग भविष्यवाणी किया होंगे। You might be thinking that there are so many preachers, men of God, who have prophesied over my life. परमेश्वर ने बहुत बार आशीष शब्द आपको दिया होंगे। Maybe many a times God has shared blessing verses with you. परमेश्वर के वचन के ऊपर आपने विश्वास किया होंगे। You have believed in the word of God. लेकिन आप ये सोचेंगे इतनी मेरा तकलीफ हो रहा है, इतनी समस्या हो रहा है, परमेश्वर मुझे भूल गया क्या करके आप सोचे होंगे। And many a times you might wonder and think that I have believed in the Lord so much, but has God forgotten me? और परमेश्वर मुझे छोड़ दिया करके आप सोचेंगे। And maybe you're thinking that God has forsaken me or left me जो alone. मेरे प्रिय जो परमेश्वर जो कहता है उनके ऊपर कोई भी व्यक्ति विश्वास करेंगे तो वो कभी वो शर्मिंदा नहीं होंगे। And the word of God says that all those who trust in the Lord will never be put to shame. वो जो है झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। He is not a God who lies. जो बोलता है वो करके दिखाने वाला है। And whatever He says, He does. जो कर दिया है वो बताने वाला है। And what He does, He says. और जो होने वाला है वो बताने वाला है। And the things that are yet to happen, even that He says. हालेलुया। Hallelujah. तो आप ये नहीं सोचना है मैं परमेश्वर के लिए इंतजार कर रहा है, मेरे जीवन में कोई कुछ कार्य नहीं हो रहा करके आपको दिल पीछे नहीं हटना है। And while you're waiting on the Lord, when things are not happening as you want, as you wish it, don't lose heart at that time. आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है। Continually believe in the word of God. परमेश्वर के वचन को सामर्थ्य और जीवन है। There is power and life in the word. हम वचन में पढ़ेंगे यशायाह चैप्टर 55 वर्स 10। For as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यो ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। हालेलुया। Hallelujah. अब ये देखिए जो आकाश से जो बारिश जो आता है, And when we consider the rains that come from heaven, जमीन के ऊपर जो पानी वो जो गिर जाती है, we see that it waters the earth. जो बोझ बेचने वाला मतलब उनको किस तरफ जो है उनको फल जो देता है, And as there is seed given to the sower, किस तरफ से परमेश्वर का वचन भी हमें कामयाब होने वाला है। and in the similar manner, the word of God also will be fruitful. वही वचन निकालेगा, वचन 11 में जो लिखा है, 11 says, So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं होता है। Remember, the word of God is never void. अगर आपके जीवन में बहुत पहला परमेश्वर कुछ भविष्यवाणी किया होंगे तो वो आपके जीवन में जरूर होगा। If the Lord has spoken over your life, if there's a prophecy over life, surely it will come to pass. आप सोचेंगे मेरे ऊपर जो भविष्यवाणी किया था, परमेश्वर ने वचन दिया था, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ करके। Maybe you're wondering that God gave me the prophecy, but it's been 1 year, 2 years, but nothing has happened as such. आज ये देख लेंगे किस तरह परमेश्वर का वचन कैसे कामयाब हो गया है। And today we will see that how the word of God gets fulfilled. हम पहले वचन में पढ़ेंगे परमेश्वर की हम निंदा करना है। And first we read that we must wait on the Lord, strengthen our hearts. लेकिन परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का वचन अपने जीवन में कार्य होने तो हमें क्या करना पड़ेगा? And in order for the word to be fulfilled in our lives, what we have to do is, हम वचन में पढ़ेंगे नीति वचन, Proverbs chapter 19 verse 23।
the Lord leads to life, and he who has it will abide in satisfaction. He will not be visited with evil. यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। हालेलुया। Hallelujah. यहोवा का भय मानने वाले के ऊपर परमेश्वर जो बात कर रहा है, And God is talking to those who fear him. और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। आमीन। Amen. अगर आप परमेश्वर को इंतजार कर रहा है, परमेश्वर के वचन को इंतजार कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? As you're waiting on the Lord, you're waiting on the word of God to be fulfilled. What you have to do during the waiting time is परमेश्वर को भय मानना है। you have to live a life of the fear of अगर the Lord. परमेश्वर को भय मानने से परमेश्वर क्या तुम्हारे जीवन को बना लेंगे? And we see that when you fear the Lord leads you जो to तुम्हारा long life. जो तुम काम जो करता है उसको आशीष देंगे, He gives you satisfaction in the work that you do. और हर संगतता में मुसीबत में परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएंगे। And in every evil and every problem, God will deliver ये you. किस तरह जो परमेश्वर ने कार्य जो किया है, And how God has performed these things. हम ये देख लेंगे। जेनेसिस चैप्टर 31 पढ़ेंगे। जेनेसिस 8 उत्पत्ति 31 अध्याय 38 वचन पढ़ेंगे। These 20 years I have been with you. Your ewes and your female goats have not miscarried, they are young, and I have not eaten the rams of your flock. इन 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा, इनमें न तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे, न तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। ये जो है याकूब का बारे में जो परमेश्वर जो बताता है, And we are reading about Jacob here. याकूब जो है अपने भाई से डर के इधर जो लाबान के उधर आने के बाद, We see that when Jacob ran from his brother Esau, he comes to Laban अगर उसने राकेल के शादी करने के लिए उनसे बात कर रहा था, and he was speaking about marrying Rachel. और वो जो है लाबान ने उनके साथ धोखा दे दिया है। And Laban here, he mistreated Jacob. तो वो जो बता रहा है, मैंने 20 बरस तुम्हारे पास मैंने काम किया And है। here he says that 20 years I have worked for you. अब ये देख लो, याकूब जो परमेश्वर ने जो इसहाक ने आशीष शब्द दिया था, तुम्हें परमेश्वर आशीष करेंगे करके, And we see that Isaac had blessed Jacob, saying that surely you shall be blessed. और ये जो याकूब ने जो इधर लाबान के घर पे आने के बाद राहेल के लिए 7 बरस और लेया के लिए 7 बरस, मतलब राहेल का कारण 14 वर्ष उन्होंने उनका बस काम करना पड़ा था। And we see that Jacob, when he came to Laban, he worked 14 years with Laban for the sake of Rachel. और उन्होंने ये जो बता रहा है, मैं किस तरह से तुम्हारे साथ मैं काम किया है, And here he's questioning him, see in what way I have worked for you. और 6 साल तुम्हारा भेड़ बकरी की मैं संभालता था। And so many years I have been taking care of all your sheep and goat. अब ये देख लो, परमेश्वर का वचन आने के बाद कितनी साल की बाद परमेश्वर कामयाब करके दे रहा है। And here we see that after the blessing was declared upon the life of Jacob, after 20 years, we see the blessing coming to pass. Yeah, we can read that verse 39. That which was torn by beasts, I did not bring to you. I bore the loss of it. You required it from my hand, whether stolen by day or stolen by night. जिससे बनेले जंतुओं ने फाड़ डाला, उसको मैं तेरे पास न लाता था, उसकी हानि में ही उठाता था। चाहे दिन को चोरी जाता, चाहे रात को तू मुझी से उसको ले लेता था। ये जो लाबान के घर पे एक नौकर के सम्मान वो काम करता था। And here we see in the house of Laban, Jacob was working like a slave. अगर वो जो जंगलों में लेके जाने भेड़ बकरी की संभालने के लिए लेके जाने के टाइम में अगर कोई भी चीज को वो मर गया तो भी, लेकिन लाबान ने इनका चीजा पूछता था। And we see that if at all any beasts of the field had torn apart any sheep or goat, Laban was questioning Jacob for it. अगर वो बताता मैं कुछ चोरी नहीं किया, फिर भी तुमने मेरे ऊपर मेरे से वसूली किया करके। And he's saying that even though I have not stolen anything, you took account from me for it. Verse 40. There I was in the day, the drought consumed me, and the frost by night, and my sleep departed from my eyes. 20 Verse 40. मेरी तो वह दशा थी
कि दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खा गया और नींद मेरी आंख से भाग जाती थी। वो बता रहा है वो 20 वर्ष में बहुत तकलीफ से मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था, मतलब दिन धूप में और रात को ठंडी में भी बैठ के अपने काम जो जवाबदारी जो रिस्पॉन्सिबल है वो काम करके दे दिए। And here he's telling Laban that see, I have worked so hard. I have during the day and the night with sleepless nights. I have worked very faithfully for you. अब ये समझ लो जो जगह में आप काम करने के समय में सच्चाई मन से काम करना And पड़ेगा। wherever you work, put your hands into work in truth. इसका मतलब नहीं है परमेश्वर तुम्हें आशीष करने वाला है, परमेश्वर तुम्हारे से बात किया है, लेकिन वो आशीष करने के लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। And though God has said, yes, I will bless you, for the blessing to come to pass, you also have to take certain steps. और उनके जीवन में काफी समस्या आ गया था। And we see that Jacob faced a lot of problems in his life. Verse 41. Then I have been in your house 20 years. I served you 14 years for your 2 daughters and 6 years for your flock, and you have changed my wages 10 times. 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। अब ये समझ ले इस तरफ से 20 years मतलब 20 सालों मेहनत कर रहा था। And we see that 20 years he has been working very hard here. और परमेश्वर ने क्या मतलब परमेश्वर का जो वाचा जो किया है वो खाली नहीं जाने वाला है। And we see that the covenant and the blessing that was given to Jacob, of course, it's not void. और verse 42. Unless the God of my father, the God of Abraham and the fear of Isaac had been with me, surely now you would have sent me away empty-handed. God has seen my affliction and the labor of my hands and rebuked you last night. मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, जिसका भय ईसाक भी मानता है, यदि मेरी ओर न होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा। हालेलुया। Hallelujah. देखो इसमें जो वचन में जो लिखा है, जो अब्राहम का और ईसा का जो परमेश्वर, मेरा जो पिता का जो परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता तो आपने मुझे ऐसे छोड़ता था, भगाता था। He's saying that unless the God of my father Abraham and the fear of Isaac wasn't with me, that you would have sent me away empty-handed. परमेश्वर ने जो इसमें जो लिखा है, मेरे कष्ट और मेरे हाथों का जो चाल चलन को, मेरा मेहनत को परमेश्वर ने आशीष दिया है। And here he's saying that God has seen my affliction and he has blessed the labor of my hands. तो इसमें ये जो वचन में ये देखना है, अपने जो जगह में क्षेत्र में आप जो काम करते हैं तो उधर सही सलामत ईमानदारी से अच्छे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। And wherever you work in whatever area or sector, you must work hard with a faithful heart. अगर इस तरफ जो अगर हम परमेश्वर का जो दास है, विश्वासी है, परमेश्वर को विश्वासी है करने तो क्या करना पड़ेगा? हमें ईमानदारी से सही सलामत कोई भी क्षेत्र में आप जो काम करते हो उधर अच्छी तरह काम करना है। And when you call yourself a believer, servant of God, children of God, then wherever you work, whatever you do it faithfully. अभी इनका जो लाभान जो मालिक है, पहले क्या मतलब क्या कर रहा था? उनको नुकसान दे रहा था, तकलीफ दे रहा था, लॉस करता था। And here we see that Laban was like his master here, and he was giving him loss and pain and affliction. तो वही तो परमेश्वर इसमें जो लिखा है, परमेश्वर ने मेरे मेहनत के बारे में देख के मुझे आशीष किया है। And here that's why he's saying that God has seen my affliction and the work of my hands. अगर आप जो क्षेत्र में काम करते हो तो आपका मालिक ने अगर कोई भी आपको सहारा नहीं दिया, आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसकी आप काम चोरी नहीं करना है। And if at all your master or your person above you does not treat you well at work, it does not mean that you must not work properly for them. वो कुछ भी करने दो। Let them be in whatever way they are. आपको ये देखना, मैं जो काम कर रहा हूँ सही सलामत काम कर रहा हूँ, मेरे परमेश्वर मुझे अच्छा करने करके You आपको must see that what work you are doing, you must do it faithfully because God is watching you. परमेश्वर ने याकूब को आशीष किया है। And here we see that God blessed Jacob. और आपने एक और एक वचन बोलेंगे, चैप्टर 32 वर्स 9, वो देख लो किस तरफ से जो बता रहा है। Then Jacob said, O God of my father Abraham and God of my father Isaac,
The Lord who said to me, return to your country and to your family, and I will deal well with you. फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और अपने जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। ये जो लिखा है, तुम्हारे जन्मभूमि में तुम लौट जाओ, And he's saying that return back to your own country. तुम्हारे जातियों के साथ में तुम जाओ। Go back to your family and your people. ये मतलब क्या है? ये तुमको जाना है, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए जाना है। And for you it is that you must return back to the Lord, the kingdom of वो लिखा God. है तुम्हारे जातियों, कौन है तुम्हारे जातियों? Who are your people? आप ये सोचेंगे कोई भी जाति में आप फायदा हुआ करके उसका बारे में प्रभु बता रहा है? And when we see about we say families or your people, your tribe, is God referring to really the people ना that are ना ना surrounded? ना, परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर का बस सच्चाई मन से स्तुति आराधना करने वाले के साथ तुम जोड़ना है। And but God is telling you that you join along fellowship with those who worship the Lord in truth and तो in परमेश्वर spirit. यही कहता है, तुम अगर उलझ जाओ, मैं तुम्हें भलाई करेंगे करके तुमने जो वादा जो किया करके। And here he's saying that Lord, you told me to return back and I will deal bountifully with you. Verse 10. I am not worthy of the least of all the mercies and of all the truth which you have shown your servant. For I crossed over this Jordan with my staff, and now I have become 2 companies. तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। ये जो बता रहा है, अपने आप को जो बता रहा है, ये परमेश्वर, तुमने मेरा दादा अब्राहम से और मेरा पिता इसहाक का परमेश्वर तू है। And here he's saying that he's calling upon God, saying, you are the God of my father, my grandfather Abraham, and my father Isaac. और तुमने उनको जो बात किया है, उसी आशीष मुझे तुमने जो आशीष जो किया And just like you have spoken to them, similarly you have blessed me. आपका जो आशीष मैं पाने के मैं योग्य नहीं And here है। he's saying that I'm not worthy of the least of the blessings that you have आज given मेरे to 2 me. परिवार के साथ मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, And now लेकिन here I'm coming back with 2 companies. मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जो कहता है, हमें क्या करना है, हर पल हमें इस तरफ से बात करना है, हे परमेश्वर, मैं आपका बेटा और बेटी, आपका संतान बनने की मैं लायक नहीं है, फिर भी आपने इतनी दयालु परमेश्वर है, इतने प्रेम की परमेश्वर है, हमें हमारे ऊपर दया करके हमें रक्षा कर दे करके हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है। And you must thank the Lord, humble yourself, saying that, Lord, I am not worthy of the least of the blessings that you have given to me, but still you have been favorable. हर पल हमें परमेश्वर को इस तरफ से बात करना है। You must always speak humbly to आपने God. कभी कभी ये बोलेंगे, मैं बहुत अच्छा पढ़ाया लिखा है, एकदम फर्स्ट क्लास मार्क लिया है, सबसे अच्छे मार्क लिया है, मेरे पास बहुत बुद्धि है, सामर्थ्य है, मैं सबसे अच्छा पढ़ा, इसके लिए परमेश्वर ने मुझे इस तरह ऊंचा कर दिया। And many a times people boast saying that, oh, I am well educated, I have scored very well. Because of that, because of my own efforts, God has lifted me up. आप ये सोचेंगे मैं बहुत अच्छा परिवार में जन्म हो गया, इसके लिए मेरा अच्छा काम हो रहा है करके। Or maybe you must be wondering, oh, I'm born in a very good family, that's the reason everything is a success to me. आपको ये बताना है, मैं हमेशा अपने मन को नीचे उतरना है, नीचे सबसे You बात must करना है, always be humble in the presence of the Lord. नम्रता के साथ बात करना है। And you must talk humbly to your God. और इस तरह जो बात करने से परमेश्वर तुम्हें जो आशीष जो दिया है और आशीष करेंगे। And as the Lord has blessed you, He will continually bless you. अगर नहीं तो आप बोलेंगे मैं मेरे सामर्थ्य से बनाया करके बोलेंगे तो परमेश्वर 1 सेकंड में आपके जिंदगी आपको नीचे उतार देंगे। And if I tell you, boast saying that this is by my strength, the Lord within a second will pull you down. आपको ये पता है, दानियल की किताब में जो लिखा है, नेबुकदनेस्सर ने जो अपने बारिश को ऊपर जो घूमते रहने के समय में, And we see in the book of Daniel about King Nebuchadnezzar that as he was walking on his terrace, मैंने अच्छा भवन बना दिया मेरा महिमा के लिए, मतलब मेरे नाम के लिए मैंने जो किया, मेरा सामर्थ्य से बनाया करके उन्होंने जो बात किया है। and he looks at his kingdom and says, see, I have built all of this with my own strength. और परमेश्वर ने तुरंत उसको बताया, उसके दूत को भेज के जो
तुम्हारा राज्य निकल गया करके। And then we see that God immediately plucked out the kingdom away from his आप hand. ये बताए वो किसके साथ बात कर रहा था नबूकदनेस्सर ने? And who was he communicating with on the terrace? अपने आप को, He was talking to himself. अपने आप को जो बात कर रहा लेकिन परमेश्वर सुन लिया। We see that he was talking within his heart, but God is hearing. तो अगर आप आपके बारे में जो भी ब्राइटनेस में जो बात करना है तो सोच समझ के बात करना है। Whenever you boast about anything even within your heart, think twice about it. लूसीफर के बारे में आपको पता है? Of course, you're aware about Lucifer. लूसीफर ने किसके साथ बताया है? Lucifer communicated with who? अपने आप को बताया, मैं भी ये परमेश्वर के सामने मैं भी ऊंचा रहेगा करके अपने आप को बात किया है। We see that he was talking to himself, within himself, that I will lift myself above the Lord. कभी कभी हमारे जीवन में भी कभी कभी नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, हो सकता है हमने इस तरह से कभी बात किया होगी। Sometimes, many a times, you're going through tough times, you're going through loss and problems. Maybe the reason might be that we may have boasted against the Lord. परमेश्वर से माफी मांगो। You must repent. परमेश्वर मैंने गलती किया, मेरा जो बात नहीं करना चाहिए तो मैंने बात कर दी, मुझे क्षमा करो। And you can repent and say, Lord, what I have spoken is unnecessary, please forgive me. मेरे पास काम का घमंडी हो गया, मेरे पैसे का घमंडी हो गया, लेकिन मैंने भूल गया आपको छोड़ के मैंने दुनिया के बारे में बात किया, मेरे सामर्थ के बारे में बात किया, मुझे क्षमा करो। And you can repent and say, Lord, forgive me that I have boasted in my work, boasted in my own talents, so please forgive me that I have not given you हम the जो glory. परमेश्वर को जो वचन जो कहते हैं, देख लो इस तरफ से जो याकूब के बारे में परमेश्वर ने वादा किया, उस तरफ से परमेश्वर ने उनको आशीष किया है। And we see that as God had promised Jacob, He even fulfilled the promise and blessed him. और हम वचन Genesis chapter 37 verse 5 पढ़ेंगे। इसमें जो बता रहा है यूसुफ के बारे में भी बता रहा है। And here we read about Joseph. Now Joseph had a dream, and he told it to his brothers, and they hated him even more. यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। और आगे So he said to them, please hear this dream which I have dreamed. उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। वो जो बता रहा मैं सपने देखा, वो और कुछ बताया नहीं, अभी तक सपना के बारे में बता नहीं, उसके पहले बोले उनके ऊपर गुस्सा कर रहा था। We see that he says that I have seen a dream. Even before sharing the dream itself, his brothers were angry and jealous of him. तो इस तरफ से हो रहा है, लेकिन हमें समझना है। And we see that when we are in such situations, but we have to तो be क्या careful. सपना देखा उन्होंने? And what is the dream? Verse 7. There we were, binding sheaves in the field. Then behold, my sheaf arose and also stood upright. And indeed, your sheaves stood all around and bowed down to my sheaf. हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले के चारों तरफ से घेर लिया और उससे दंडवत किया। ये जो बता रहा है, हम सब खेती में अपना अनाज की बांध रहा था। He's saying that we were in the field binding our sheaves. जब अचानक जो मेरे जो सिरा है उड़ के खड़ा हो गया है। And he says that all of a sudden mine was standing straight. और तुम सबका जो शीशो जो है खरम सब मुझे चुका दिया है। And we see that he says that mine arose and stood, and all the other sheaves which belonged to you all came and bowed down. सब जन झुक गया उनके सामने। It all bowed down. तो ये बोलने को सबको और गुस्सा आ गया है। And on hearing this, his brothers got even more angry. अब ये देख लो, जो उनको जो ट्रेडिशन जो मिला है उसके बारे में वो बताया है। Here he is only sharing a dream that he had. और उसके बारे में और एक जो बता रहा है verse 9। Then he dreamed still another dream and told it to his brothers and said, look, I have dreamed another dream, and this time the sun, the moon and the 11 stars bow down to me. फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यों वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या बता रहा है?
और एक मैंने सपना देखा है, और जो सूर्य और चंद्रमा और 11 स्टार, मतलब तुम लोग जो मतलब मुझे प्रणाम करने की कर रहा था, देखा करते। And he's saying that I saw a dream, another dream, where the sun, the moon, and 11 stars bow down to me. और verse 10 and 11. So he told it to his father and his brothers, and his father rebuked him and said to him, "What is this dream that you have dreamed? Shall your mother and I and your brothers indeed come to bow down to the earth before you?" यह स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, क्या यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? ये जो पता ना है, लेकिन याकूब क्या कर रहा था, दूसरा वचन जो लिखा है, And his brothers envied him, but his father kept the matter in mind. उसके भाई तो उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। हालेलुया। ये देख लो, याकूब का अच्छी तरह मालूम है, परमेश्वर कुछ ना कुछ बताया तो जरूर कार्य करेंगे करके। And we know that Jacob knew that if God has revealed something to Joseph, something is going to वो happen. जो बता रहा है सूर्य और चंद्रमा उनको ऊपर प्रणाम करने वाला करके। And he said that the sun and the moon also is going to bow down. और ये जो है मतलब जो तू सामने बता रहा था, लेकिन याकूब वो वचन को मनन कर रहा था। But though Joseph shared it out, Jacob kept these things in his mind. हम वचन चैप्टर 39 19 पढ़ेंगे, सॉरी चैप्टर 39 या 19 पढ़ेंगे। So it was when his master heard the words which his wife spoke to him, saying, "Your servant did to me after this manner," that his anger was aroused. अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का। बोलती बल्कि जो पत्नी ने जो इनके साथ जो गलत मतलब इंसान लगाया। And we see that Potiphar's wife gave a false accusation against Joseph. और यूसुफ ने कुछ गलत किया नहीं है। And we see that Joseph did not do anything wrong. लेकिन क्या हो गया, उनके जीवन में उनको दंड मिल गया है। But here, in spite of him not doing anything wrong, और he was उनके punished. मालिक ने उसके बारे में बराबर इंक्वायरी नहीं किया है। And we see that his master Potiphar did not even inquire about और the matter. यूसुफ के साथ में बात ही नहीं की। He did not discuss or get it clarified through Joseph. उन्होंने अपने घर में उच्च स्थान में रखा था, उसको अधिकार दिया, लेकिन उन्होंने उनके पास कुछ भी बात नहीं किया है। We see that though he had kept Joseph in a high position over all his house, he did not discuss anything. इसलिए सिर्फ अपने पत्नी के गलत इंसान के ऊपर नजर रखे हुए उन्होंने क्या किया है। And here we see that just believing the false accusation by his wife, what he did was, और नेक्स्ट वचन में verse when 20, Joseph's master took him and put him into prison, a place where the king's prisoners were confined, and he was there in the prison. और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा। अतः वो क्या कर रहा है, देख लीजिए, ये जो चीज के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। You must understand these things which are written here. तो उन्होंने कुछ गलती नहीं किया, उन्होंने कुछ भी पाप नहीं किया, फिर भी उनको ऊपर दंड आ गया। We see that though he had not done anything wrong, he was suffering punishment here. ये वचन को ये जो वर्स 21 से लेकर 23 को आपको बहुत पढ़ना है, इसके बारे में बहुत याद करना है, वर्णन करना है। Read verse 21 to 23 and meditate upon it. But the Lord was with Joseph and showed him mercy, and he gave him favor in the sight of the keeper of the prison. वो जो प्रिजन में जेल में डालने के बाद जो परमेश्वर यूसुफ के साथ में थे, इसके कारण जो जेलर जो है उनको ऊपर दया कर दिया है। And we see that God was with Joseph in the prison, and God gave him favor in the sight of the keeper. वो वर्स 23 में जो लिखा है, The keeper of the prison did not look into anything that was under Joseph's authority, because the Lord was with him, and whatever he did, the Lord made it prosper. यूसुफ के वश में जो कुछ था, उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था,
यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। हालेलुया। Hallelujah. ये एक बात हमें याद रखना है अपने जीवन में, अगर हम सही है तो सामने से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ समस्या आ रहा है, तो हमें क्या करना है? And we see that even though you are living a righteous life, you're following the word of God, and if at all you face such situations and problems, हमें गलत नहीं करना है। you must not get into हमें wrongdoing. परमेश्वर के भय मान के अपने जीवन को बिताना है। You must live a life of the fear of the Lord and continue to live your वो life. उसने क्या जवाब दिया यूसुफ ने? What was the answer he gave मैं Potiphar's wife? परमेश्वर को मैं क्या जवाब दूं? He says that what will I answer God? तो परमेश्वर मैं किस तरह आंसर करूं? He said that what will I answer my God? तो यही सब अपने जीवन में यही सवाल हर पल अपने आपको देखना है। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर सुन रहा है करके आपको हमेशा याद रहना And है। at all times you must have that thought and the reminder that at all times God is watching over you. वही तो वचन में जो लिखा है, नीति वचन में 19 में 23 वचन में हम जो पढ़ा था, अगर जो व्यक्ति परमेश्वर को भय मांगे तो उनके जीवन में हर चीज आशीष में बदलेंगे करके। And as we read in the book of Proverbs, that all those who trust in the Lord, who fear the Lord blesses them. हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, उनके वचन के ऊपर हमें विश्वास करना है। And we must believe in the Lord, believe in His word. आपके जीवन में जो भी भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने किया होंगे, लेकिन वो एक न एक दिन होएगा। And all the prophecy that God has spoken over your life, surely one day it will come to pass. अगर जो भविष्यवाणी जो शब्द आपके जीवन में कार्य होने के लिए आपको परमेश्वर के ऊपर भय मान के अपने जीवन में बिताना And है। for the word to come to pass, continue to live a life of the fear of the Lord. परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। Obey the commands of God. परमेश्वर का आज्ञा पालन करें तो किस तरह जो यूसुफ के जीवन में किस तरह जो परमेश्वर ने उच्च स्थान में जो लेके गया है, वो पहला जो बात किया वही परमेश्वर करके दिखाया है। And just as God had already shown Joseph before in the dream that He's going to lift him up, in the same similar manner God fulfilled the word and He lifted Joseph up. जो वचन में जो लिखा है, जो परमेश्वर ने जो बात किया है, ऐसा हमें जो पढ़ा था, उनके एक शब्द भी व्यर्थ नहीं होगा करके। And as we read in the book of Isaiah, it says, none of His word is void. अब ये देख लो जो बात में क्या हो गया था, जो यूसुफ ने परमेश्वर को उच्च स्थान में परमेश्वर ने उनको लेके गया And है, we see that in Joseph's latter life, that God lifted him up. और परमेश्वर ने उनको वो राज्य में जो मिस्र देश में उनको प्राइम मिनिस्टर बना के दिया, And we see that God elevated him to be the prime minister of Egypt. और वो जो राज्य में जो भागवान जो राजा था, राजा कुछ भी नहीं करता था, लेकिन हर चीज यूसुफ करता था। And we see that Pharaoh did not do any work later on, but Joseph was in charge of everything. और परमेश्वर यूसुफ के साथ था, इसका कारण उन्होंने जो भी काम जो किया है, हर काम में सफलता मिल गया है। And because God was with Joseph, everything that he did prospered. और जो गाना देश में अकाल आ गया, We see that there was a famine in the land वो of Canaan, प्रॉब्लम आ गया, खाने के लिए मांदा हो गया, and they had problem for even food. और वही गाना भाई लोग मुझे इनका भाई लोग सब जा रहा है, इजिप्ट देश में जा रहा है। And we see that because of the famine, the brothers were traveling towards Egypt. जो वचन में जो लिखा है, जो उन्होंने किस तरह जो ड्रीम देखा है, सपना जो देखा है, उसी वजह से उसी का माप में जो पैलेस में जाके यूसुफ को ऊपर प्रणाम कर रहा था। And we see that just like in the dream, the brothers went into the palace of Joseph and they bowed down to him. अपने जीवन में ये परमेश्वर एक बार बात किया तो आपको ऊपर विश्वास रहना है। And if God has spoken to you once over your life, believe that word. अभी आपको ये पता है कि यूसुफ को वो जो सपना जो देख रहा था, हर पल उन्होंने कुछ याद तो होगा। Don't you think that Joseph would have remembered the dream many times in his life? अगर वो भूल गया होंगे, लेकिन परमेश्वर ने क्योंकि उनको कितने तकलीफ उठा दिया, छोटी उम्र में उनको कट्टे में डाल दिया है, उनको उठा के दूसरे के बेच दिया है, उसने दूसरे घर पे बेच दिया, नौकर बन के, मतलब वो कितनी तकलीफ उठाया। We see that his life was totally contrary to the dream that he had. We don't know if he had forgotten the dream, but he was suffering from his young age, thrown into the pit, become a slave and serving others. मेरे प्रियो, इस तरह से अपने जीवन में कुछ भी होने दो, लेकिन हमें पवित्र जीवन बिताना है। My beloved, even though you're going through a tough time, you live a holy life. पवित्र जीवन बिताना है, परमेश्वर का भय मान के जीवन You बिताना live a है। life that is holy and live a life of the fear of the Lord. किस तरफ से जो छोटी उम्र में जो सपने जो देखा, वो परमेश्वर ने उनको आशीष में बदल के दे दिया,
और उसने खाली करके दिया। इस तरफ से परमेश्वर आज तुम्हारे साथ जो भी बात कर रहा है, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करने वाला And है। just like God revealed to him in his young age a dream, the same manner how God fulfilled it, whatever God has spoken over your life, He will fulfill it too. आप सबका जीवन में परमेश्वर ने जो भी भविष्यवाणी जो किया है, भविष्यवक्ता के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा, हर चीज के ऊपर आप विश्वास रखिए। And believe in the words, whatever God has spoken, maybe through His prophets, through His men, you believe the word, God will fulfill it. वो सही समय में परमेश्वर करेंगे। And at the right time, God will fulfill it. अगर वो जो जीवन में आगे बढ़ना है, उच्च स्थान में जाना है, तो कोई स्टेप को आपको पार करना पड़ेगा। And in order to go up in life, you have to cross over some steps. अभी आपको बड़ा ऊंचा जगह जाने के लिए उधर चढ़ के जाना पड़ेगा, आप जंप नहीं मार सकते हैं। And when you have to climb up to a higher level, you cannot just directly jump, but you have to climb step by step. स्टेप बाय स्टेप आपको संभाल के जीवन में आगे बढ़ना है। And you have to take care of every step that you take, and carefully you must climb up आपके to the जीवन में top. प्रभु आशीष देने वाला है। God will bless your आज future. परमेश्वर जो तुम्हारे जीवन में जो बता रहा है, जो तुम नुकसान में है, वो सब बदल के प्रभु आशीष से Even बदलेंगे। today the Lord says to you that whatever loss you're going through, God will turn it into profit. जो किस तरफ जो परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, जो बारिश आके सबको भलाई करके दे रहा है, उस तरफ से मेरा वचन भी आके जो मैंने जो किया था, वो हर काम करके वो जाहिर करके परमेश्वर ने वादा किया, उस तरफ से आपके जीवन में आज से नया कार्य करने वाला है। And just like the rain comes down on the earth and waters it and does not leave away empty just like that, the same way God's word that has been spoken over your life will come to pass and God will let it be तो fulfilled. आज जो नवंबर पहले तारीख को जो परमेश्वर जो आशीष का शब्द यही दे रहा है, जो व्यक्ति परमेश्वर का इंतजार जो कर रहा है, अपने हृदय के स्थिर रहने के लिए बता रहा है। And even today, as the 1st of November, this month, as you enter this month, God is saying that those who trust in the Lord, you strengthen your heart. परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास कर लीजिए, Strengthen your heart and you believe in the word of God. तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। He will never forsake अगर you. तुम्हारे जीवन में तकलीफ है, हर तकलीफ परमेश्वर देख रहा है। And whatever pain and suffering you're going through, God is watching. He's aware. उन्होंने सही समय में काम करके आपको ऊंचा स्थान में करेंगे। And at the right time, God will fulfill it and He will lift you up. विश्वास के साथ आमीन देंगे। Come on, with faith, say Amen. हालेलुया। Hallelujah. अपने बगल में जो भी बैठा है उनकी आप बताओ, जो परमेश्वर के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, परमेश्वर मेरा विश्वास को आदर करेंगे। Tell the person next to you, whoever is seated next to you, just tell them that I believe in the Lord and the Lord will honor my faith. और जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर जो भी बात किया है, मेरे जीवन में काम होने वाला है। And tell the person next to you that whatever God has spoken over my life, He will fulfill it. हालेलुया। Amen. God bless you। Hallelujah. प्रभु आप सबको आशीष हम करें. प्रार्थना करेंगे। Come, let's pray. प्रभु परमेश्वर आपको हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। Lord Jesus, we thank you at this time. प्रभु आप सच्चाई परमेश्वर है, अच्छे परमेश्वर है। And you are a good God and you are the true God. आपने जो भी बात किया था वो करके दिखाने वाला परमेश्वर And you है। are a God who fulfills everything that you have spoken. आपने झूठ बोला परमेश्वर नहीं है। You're not a God who ever lies. आपने देखने वाला परमेश्वर है। You're a God who watches. आपने सुनने वाला परमेश्वर You're a है God who hears. और उत्तर देने वाला And परमेश्वर you're a है। God who इसके answers. लिए आपको धन्यवाद करते हैं And प्रभु। therefore we praise आज you. प्रभु जो याकूब के जीवन में आपने किस तरह आशीष से बदल Lord, in दिया, a similar manner as you blessed Jacob, किस तरफ से आप यूसुफ के जीवन में आपने आशीष दे दिया and है। just like you blessed Joseph, आज मैं प्रार्थना करता हूँ जो देखने वाले, जो सुनने वाले, जो प्रभु सबके जीवन में प्रभु कार्य कर लीजिए प्रभु। and even today I pray that all those who are watching and they are hearing the word, that you will perform a work in their life. आपने इनके जीवन में क्या क्या भविष्यवाणी जो किया है प्रभु, अभी याद कर लीजिए प्रभु। We pray that all that word, the prophecy, all the word that you have spoken over their lives, you will remember it to this day. प्रभु वो आपका आशीष को पाने के लिए, आपका अभिषेक को पाने के लिए, आपका उद्धार को पाने के लिए प्रभु इनको आपके ऊपर डर के भय मान के जीवन बिताने के लिए प्रभु मदद कर We दीजिए। pray you'll help them to live a life of the fear of the Lord, that they may receive the blessing and the anointing that you have kept in store for them.
जो किसको क्या क्या चाहिए प्रभु आशीष कर लीजिए प्रभु। Lord, whatever each person needs, requires, you fulfill it for them. Whatever may be, आप जो भी आपको जो प्रार्थना जो करता है प्रभु, हर चीज को प्रभु मदद कर दीजिए, उनको कामयाब करके दीजिए प्रभु। And whatever they are asking and requesting of you, you pray, you fulfill it for them. जो बीमारी के साथ में प्रभु आपको जो वचन सुनना है तो प्रभु इसी वक्त प्रभु आपका पवित्र हाथों से चूम के प्रभु नया चंगाई होने प्रभु। Lord, all those who are hearing your word, even today you touch them with your holy hands and you heal them. किस तरफ से जो यूसुफ के जीवन में जो जेल में जो अटक गया था, बंदीगृह में गया था, इस तरफ से कोई भी शैतान का बंधन में बंदीगृह के अंदर जो गया तो प्रभु इसी समय में उनको छुटकारा दीजिए। We pray like if in a similar manner like Joseph, that anyone is bound by the works of Satan, that even today you release them in the name of Jesus. काफी चीजों से प्रभु लॉस होके बैठेंगे। किस तरफ से याकूब को लाबान ने नुकसान करवा दिया, उसको बाद में आप किस तरफ आपने आशीषों से बदल दिया। इसी वजह से प्रभु आज जो भी नुकसान खाया होगे, जो लॉस हो गया होगे, जो परिवार है, जो फैमिली है, जो आपको जो वचन सुनने वाला है, उनके जीवन में प्रभु वापस उसके डबल पोर्शन में आशीष कर लीजिए। Even today, all those who are hearing your word, if they are going under some kind of loss, just like how Jacob was treated by Laban, you turned all his loss into profit. We pray in a similar manner, you will turn all their loss into profit. ये जो आपने प्रार्थना हमारा सुन लिया उसके लिए धन्यवाद करता है। We thank you because you have heard our prayer. आपने आज से नया चंगाई दे दिया उसके लिए धन्यवाद करता है। Thank you that you have given us a new और healing. आपने जो भी भविष्यवाणी जो किया है, हर सबको हम सबको ऊपर आशीष आने दो। We pray that every word that is spoken over our life will come to pass. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ। I ask in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. हम प्रार्थना करेंगे, आखिरी प्रार्थना मेरे पीछे दोहराइए। तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं इससे पीड़ित न रहूं। आमेन। हम आशीष लेंगे। अनंत काल जीवन देने के लिए पृथ्वी में आके लहू भागे हमें बचाने वाले प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, संसार को पर इतना जो प्रेम किया पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्य का अभिषेक हम सबके साथ हमेशा हमेशा बने रहे। आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 प्रभु तुम्हारे जीवन में आज से नया कार्य कर दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करें। Even today the Lord has performed a new work in your life. You start praising the Lord. विश्वास करो परमेश्वर के ऊपर। Continue to believe in the Lord. God bless you. God bless you. Thank you so much for joining along with us in this live stream service. धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे इस लाइव स्ट्रीम पर। हम विश्वास करते हैं कि आराधना और प्रार्थना और जैसे वचन हमने सुना है, प्रभु आज भी और ये महीने में भी प्रभु आपके जीवन में महान महान कार्य करेगा। हालेलुया। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको, आपके परिवार को आशीष करते रहे। आने वाले दिनों में हम जैसे सर्विसेज चलते रहते हैं, जुड़ते रहिए, पेज को लाइक करके रखिए, यूट्यूब चैनल हमारा जो हार्ट ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज है उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हमारा अपडेट्स आपको मिलता रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।